नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता ग्लोबल में। इस बुलेटिन में हम आपको विदेश की सारी खबरों से जोड़े रखते हैं और तमाम विदेश में जो भी चल रहा है उससे आप अपडेट रहेंगे। खबरों की शुरुआत करते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बीते रविवार को पेंसिल्वेनिया में चुनावी सभा के दौरान जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में ट्रंप बाल बाल बच गए। हमले के बाद ट्रंप पहली बार रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में नजर आए। हमले के बाद आपको बता दें कि मिल्वॉकी शहर में सोमवार को हुए रिपब्लिकन नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहली बार ट्रंप को देखा गया। इस दौरान उनके कान पर बैंडेज लगा हुआ था और वो पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर आए थे। आपको बता दें, रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में ट्रंप को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुन लिया गया है। उन्हें डेलीगेट्स ने 2387 वोट मिले हैं, जबकि उम्मीदवार तय करने के लिए 1215 वोटों की ही जरूरत होती है। आपको बता दें, यहां दक्षिण डकोटा की गवर्नर क्रिस्टी नोएम ने आरएनसी में ट्रंप की लड़ाकू छवि का जिक्र किया। आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने ट्रंप के बारे में क्या कुछ कहा है। Dakota proved that freedom will make America wealthy again. And with President Trump in the White House, with Senator J.D. Vance by his side, we will prove it across America. In South Dakota, prior to this week, we already knew that President Donald Trump was a fighter. He is the toughest man that I have ever met. Nobody has endured more than what he has gone through. They've attacked his reputation, they impeached him, they tried to bankrupt him, and they unjustly prosecuted him. But even in the most perilous moment this week, his instinct was to stand and to fight. Now, I know that many of you are angry, but now is the time to unite. And we have to get to work. We have to win the hearts and minds of every single American, wake them up with truth and with wisdom. We need to listen to them. You can't win people over by arguing with them. Most of you probably first heard about me during COVID, didn't you? Because South Dakota was the only state in the country that stayed open for business. We didn't mandate anything. We never ordered a single business or a church to close. I never even defined what an essential business was, because I don't believe that the government has the authority to tell you that your business isn't essential. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ओहायो के सेनेटर जेडी वेंस को अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के तौर पर नॉमिनेट किया है। इसके साथ ही जेडी वेंस की पत्नी की काफी चर्चा हो रही है। वेंस की पत्नी उषा चिलकुरी वेंस भारतीय मूल की हैं। आपको बता दें, उषा वेंस एक सफल अधिवक्ता हैं। उषा का भारतीय संस्कृति से गहरा संबंध है। The vice presidency is an office of sacred trust. The man who accepts this nomination accepts with it the awesome responsibility to give wise counsel to the president, to represent America abroad, to preside over the Senate, and to be ready to lead our nation at a moment's notice. J.D. Vance is such a man. JD, 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 JD. It is therefore my honor to nominate Ohio Senator J.D. Vance for the office of Vice President of the United States of America. The question is on the motion that Senator J.D. Vance be nominated by acclamation. All those in favor signify by saying aye. Aye. All those opposed signify by saying no. In the opinion of the chair, the ayes have it, and the motion is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid upon the table.
and alternates, ladies and gentlemen, I am proud to announce that Senator J.D. Vance has the overwhelming support of this convention to be the next Vice President of the United States. जेडी वेंस ने ब्रिटेन की नई सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि लेबर पार्टी के चुनाव जीतने के बाद ब्रिटेन वास्तव में पहला इस्लामिक देश बन सकता है जो परमाणु हथियार हासिल करने में कामयाब हो सकेगा। वो यूएस कंजर्वेटिव सम्मेलन में बोल रहे थे। जेडी वेंस का ये तंज ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी के लिए था। दरअसल मई में लैमी ने वेंस को अपना मित्र बताया था। आपको बता दें कि वेंस के साथ अपनी गरीबी भरे बचपन की तुलना की थी और उसके साथ रिश्ते सुधारने की उम्मीद जताई थी। लेकिन ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सत्ता में आने पर जो बदलाव होने वाले हैं उन्हें लेकर उन्होंने लैमी पर तंज कस दिया। द गार्डियन के मुताबिक वेंस ने कहा कि मुझे ब्रिटेन को हराना है। बस एक और बात कि मैं हाल ही में अपने दोस्त से बात कर रहा था। हम दोनों इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि परमाणु बमों का प्रसार दुनिया के सबसे बड़े खतरों में से एक है, लेकिन बाइडेन प्रशासन को इसकी परवाह नहीं है। अब लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से चाहे वो बाइडेन हो चाहे ट्रंप हो, दोनों की तरफ से अपनी अपनी दावेदारी पेश की जा रही है। और ये थी हमारे बुलेटिन, आज के इंटरनेशनल बुलेटिन। आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा और कौन सी खबरें आप इस बुलेटिन में देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।